Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu. Harihi Om. Namaskars to all of you. Very good afternoon and welcome back to this auditorium for the next 60 minutes plus your interaction with these wonderful people, Padma Shri Dr. Ravindra Kole and Padma Shri Dr. Smita Kole. Please welcome them from a round of applause. I appreciate them. What is important for us in India today is not we easily adore, we easily confer awards and things like that. But what Vivekananda wants is application, not just appreciation. Implementation, an ounce of practice is better than tons of tall talk. Whether you are a teacher, whether you are a student, whether you are a monk, whether you are a collector, whether you are a officer, whether IT professional, anybody, whatever is not the point. You are in Ireland, you are in New York, you are in Delhi, you are in Bombay, you are in any other place. What is important is what I can do for the country, not what country can do for me. From childhood upwards till certain time, we are all consumers. I want. But when will you become contributors? When you know, yes, I have got the ability, I have got the capacity, I have got the inspiration, I become a contributor. We all want mangoes, we all want fruit, but we should also know to pour water to the root of the tree. So Sri Ramakrishna made a Vivekananda apply the principles of Vedanta in daily life. Taking that clue, I'll tell you one small example of Albert Schweitzer, Dr. Albert Schweitzer, who, like this wonderful couple, was inspired by the tribals in South Africa. He gave his life for them. He died in the tribal area itself. He was also given Nobel Prize for service. He was brought to Chicago for a felicitation after getting Nobel Prize for service. About 20-30 people, billionaires were there in the auditorium. And felicitation over, appreciating over, honoring him done. And they had a tea party in the next room, hotel room. Okay? And one lady was there, waitress, well dressed, and she knew the manners. She brought tea, she brought cake, she brought other things and distributed all of them. There's a big cake which can be cut into number of pieces and distributed to the guests. Then Dr. Albert Schweitzer asked the host who invited him, how many guests are there in the hall? Then the host counted, sir, 20 billionaires are there. They are the chief people who organize this mega event for your sake. Then Albert Schweitzer took the knife and cut 20 pieces of the big cake and took one separately and cut that into two parts. Host said, sir, only 20, not 21. Albert Schweitzer said, there are 21. Who is the 21st? She is the waitress who brought the cake. She also is part of the party. Call her inside. Next day morning in Chicago newspapers it came, we all talk, but here is a man who did what he means. And that lady who received that cake amongst the billionaires cried. She was in tears. She became emotional and said, somebody has treated me like another human being today. Till now, we bring cakes, we get the insults, we take their plates, that's our work. We are paid for it. But here is a man who looked beyond and said, she is also waiting there in the corner. Let her come and have a piece of cake. It's a very interesting episode, a real story. So, when I first heard their interview in Kaun Banega Crorepati, from that time I was eager to see them. Now, after 5 years, I have got this opportunity to see them. Dr. Ravindra Kole and Dr. Smita Kole. And more details, less introduction, less talk, because these two live examples, whether you are a teacher, how I can teach better like these people in the middle of the night or the end of the day. I am a student, how well I can study and prepare myself to serve the nation. We gave ditch water when Ganga is flowing by.
Vivekananda says, do you feel, first of all? Dr. Balasubramaniam, and when we were talking just few minutes back, he was telling if this triangle of Vivekananda's message is given in schools, colleges and houses, how wonderful India will be. Heart to feel, head to think and hands to work. Today we have lost the feeling. We have become dry potatoes, only I for myself, let the devil take the hindmost. What do they get by doing that? It is Mahayagna. It's a great sacrifice. Like what Rudrabhishekam we do, or Palabhishekam we do, or Tirumala Kalyanam we do. Here is that giving injections, giving paracetamols, treating them like other human beings and treating them as their own family members. And apart from the 3 or 4 things which they will also tell in their own language, in their inimitable style, I read in the introduction to Dr. Ravindra Koleji, when Smita Koleji was agreeing to marry, the last one is important. You also should be ready to beg like me. Then alone you consider I can marry you. Very important 4 things he put condition. Very humorous story, that part of it, I want them to tell about it. God is suffering and I want to just enjoy. Do we think about it? We just appreciate and afterwards we go and take selfies. No. Tomorrow morning can I go to Adilabad Junction or to some other far off place and give a paracetamol or give a book? Can I serve? Shivagnane Jiva Seva? All right. That distance, let us keep it at a high goal. But simple things, can I do it with tremendous seva bhav? Or can I see the suffering? Vivekananda asked this question. When some human being is stretching his or her hand in the junctions, we may say mafia, we may say this, we may say that. But a real feeling man will think, why another mother or brother or another human being is asking another human being to give 5 paisa or 5 rupees? You see, especially by practical example, I will tell shortly, quickly, please listen attentively. Near one junction, they were having, people will sell something in RTC Crossroad Junction or Kairathabad Junction, Paradise Junction, in some traffic junctions, they sell early mornings. They sell some napkins, what you call polish cloth. They sell some pens. They sell some national flags. You see how things have changed. They are not begging, they are doing business for the country. And when somebody was selling a polished cloth near Paradise Junction, I asked how much does it cost? That polished cloth, he said 20 rupees. I asked him 20 rupees for a polished cloth and I asked how much do you get if I buy one polished cloth? That poor man on the street said, sir, Swamiji, I get 2 rupees as my pocket, as my profit, just 2 rupees. What happens to that 18 rupees? Some mafia, middlemen, etc. will swallow it. For that 2 rupees, he is going from junction to junction, road to road and asking you, buy one polished cloth, buy one polished cloth. And what did I do? I brought 5 polished cloths. 100 rupees I gave. Our car driver asked, Swamiji, 5 enduku, ఒకటి చాలండి, ఒకటి ఆల్రెడీ ఉంది కదా కార్లో. అయ్యా, ఈ 5 కొంటే ఆడికి ఎంత వచ్చింది? 10 రూపాయలు. And one polished cloth I always keep in my bag, laptop bag, as a memory of that person who said, this gives me only 2 rupees. From that day I keep buying whenever I go in the junctions. And we can distribute it to others. So it starts with the minimum feeling that you can teach your children, teach others, and then go forward and visit these places, visit these Tirtha Kshetrams. This is the pilgrimage center, Malegat, Amaravati district. As much punyam you will get when you visit Pandarapur or you visit Sri Shailam. The same punyam you will get because Swamiji says there the living God is worshipped with medicines. Somebody wonderful person is doing grand seva in Devas district of Madhya Pradesh. Our devotee by name Vinayak Lohani. From 2003 he is doing it. Silent work, but thousands are benefited. He is IIM Kolkata gold medalist, but he gave up his career and walked into the tribal areas of Devas district, Madhya Pradesh. So here is a live example in front of us in form of Dr. couple, Ravindra and Smitaji. They are like your father and mother. Listen to their story and question them and find out what best we can do to make Mother India smile again.
over to Dr. Smita Jain College. Mike. आप बताइए, ये लोगों को टीचर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, डिवोटीज भी है, जो आप पहले बताया था, यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट द इंस्पिरेशन दैट यू गॉट फ्रॉम विनोबा, फ्रॉम गांधी जी, फ्रॉम विवेकानंद, और कुछ घटने इस नागरिकों को, सिटी लाइफ वालों को क्या इंस्पिरेशन देंगे या कुछ सेंसिटिव मैसेज देंगे? मुझे और एक लगता है कि जैसे रामकृष्ण मिशन के साथ मेरा जो संबंध है वो थोड़ा मैं और बताना चाहता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में बुक्स बदलने के लिए जाता था तो वहाँ जो मॉन्क्स रहते थे तो उन्होंने मुझे बिटवीन द लाइंस का मतलब समझाया। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हम सिर्फ सुनते थे, उसका मतलब नहीं समझता था। तो जो मॉन्क्स थे उन्होंने मुझे मतलब समझाया कि ऑथर जो चाहता है कि रीडर तक पहुँचे, वो आप तक पहुँचना और उसके बाद में वो आपने उसका प्रैक्टिकल करना अपने लाइफ में, दैट इज़ बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। समझ रहे क्या आप? हम लाइंस पढ़ते हैं और लाइंस को भूल भी जाते हैं। तो उनका कहना था कि बिटवीन द लाइंस रीडिंग करना सीखो। बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है कि आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें ऑथर आप तक जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज आप अपने ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, उसका प्रैक्टिकल कैसा करोगे अपने ज़िंदगी में, दैट इज़ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। उससे मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो किताबें पढ़ी, स्पेशली मैं जो देशभक्त थे उनकी किताबें पढ़ी, और उनमें से मुझे ऐसा लगता कि मुझे लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए। जब अंग्रेज थे तब बहुत आसान था कि देश के लिए वंदे मातरम कह देना, भारत माता की जय कह देना, और ब्रिटिश सोल्जर ने गोली मार देना और शहीद हो जाना। ये बहुत आसान था। आज उतना आसान नहीं है। आज अगर देश के लिए कुछ करना है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। समझ रहे ना आप? एक जस्टिस हाई कोर्ट जज थे चंद्रशेखर धर्माधिकारी, वो हमेशा कहते थे कि मैं जब भी कोई डिसीजन देता हूँ, मेरे सामने उनके सामने हाई कोर्ट में केसेस आती तो बड़ी बड़ी केसेस आती, तो मैं जब भी डिसीजन लिखता हूँ तो मुझे हर बार सैक्रिफाई होना पड़ता, मुझे हर बार सैक्रिफाई होना पड़ता। इतना प्रेशर रहता है कि ऐसा डिसीजन दो वैसा डिसीजन दो, लेकिन मैं मेरे कॉन्शियस के अनुसार डिसीजन देता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि अपने कॉन्शियस जो कहती है, मेरी कॉन्शियस जो कहती है, उस तरीके से मैंने जीना चाहिए। माँ एक कहती है, पिताजी एक कहते हैं, फ्रेंड्स एक कहते हैं, एटमॉस्फेयर एक कहता है, सीनियर्स एक कहते हैं, जूनियर्स कुछ कहते हैं, तो उन सबको हमने डरना नहीं चाहिए, उसके चक्कर में आना नहीं चाहिए। जो इंडिविजुअल मैं एज ए रवि कोल्हे हूँ, मुझे जो लगता है वो मैंने करना चाहिए। मुझे लगता था कि डाउरी सिस्टम बंद होना चाहिए, इसलिए मैंने 5 रुपये में शादी का डिसीजन रखा, क्योंकि डाउरी से डेथ ये विदर्भ का एक 20 साल पहले का मेजर प्रॉब्लम था। समझ में आया ना? इसलिए मैंने मेरे लाइफ में डिसीजन लिया कि मैं डाउरी नहीं लूँगा, मैं रजिस्टर मैरिज करूँगा। दूसरी बात कि वहाँ एक संत होके गए, गाड़गे बाबा। गाड़गे बाबा में ज़िंदगी भर लोगों से मांगा, और मांग कर उन्होंने ज़िंदगी किया, तो खुद के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कटोरा था मांगने के लिए। जो कुछ मांगा वो पैसे में उन्होंने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, धर्मशाला बनाई, अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम बनाए, गौशाला बनाई, और क्या क्या किया। आज भी बम्बई में अगर कोई जाता है तो बम्बई में उतनी अच्छी धर्मशाला जो उन्होंने 75 साल पहले बनाई, उतनी अच्छी धर्मशाला लोगों के लिए नहीं है। कैंसर पेशेंट्स सब वहाँ जाते हैं। जो भी कैंसर पेशेंट अगर बॉम्बे गया होगा तो उसको पता है कि गाड़गे महाराज धर्मशाला है, वहाँ भोजन भी मिलता है, वहाँ रहने की सुविधा भी मिलती है, वहाँ सब कुछ सुविधा है। ये उन्होंने 75 साल पहले कैसा सोचा होगा। आज हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं, 10 साल बाद में, 5 साल बाद में उसको तोड़ के दूसरा बनाना पड़ता है।
यानी हम 5-10 साल की भी सोच नहीं सकते आगे का, जबकि हम एमटेक पीएचडी है उस सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट या उसके आगे पढ़े हुए ही डिज़ाइनिंग करते हैं। वो अंगूठा देने वाला आदमी था, लेकिन उसकी सोच उतनी थी। तो अपनी सोच बढ़ाना यह बहुत ज़रूरी बात है। देश के लिए अगर हमको कुछ करना है तो पहले खुद की सोच बढ़ाना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके कारण वो शादी में 4th कंडीशन आई कि खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भीख मांगने की तैयारी चाहिए। और कम से कम 100 लड़कियों ने मुझे ना कहा। उसके बाद में स्मिता जी ने हाँ कहा। पहले की 2 कंडीशंस शायद बताई। पहली ये थी कि 400 रुपये में घर खर्चा चलाना। तब एक पेशेंट से 1 रुपया हम लेते थे, मुझे मैं नहीं, डॉक्टर को। कंसल्टेशन फीस मेरी 1 रुपये थी, 1 रुपये और थी। महीने में 400 पेशेंट आते थे तो मेरी कमाई 400 रुपये थी। इसलिए वो कंडीशन थी पहली कि 400 रुपये में घर खर्चा चलाना। और मैं नागपुर में प्रैक्टिस करती थी तो मैं नोटा ही छापती थी वहाँ। जे रोज की नोटा गिनने के लिए मेरे असिस्टेंट को मेरे को ऐसा लगाना पड़ता था। और कितनी बाप रे इतनी गड्डी हो गई, नई नहीं थी, नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है। तो कितने पैसे आए, कितने पैसे आए, दरवाज़ा बंद करके हम देखते थे, इतने पैसे आते थे। तो बड़े पहले बहुत अच्छा लगा कि अरे बाप रे इतने पैसे ये मेरे हैं, ऐसा लगता था। फिर जब इतने आने लग गए तो पहले तो इतना कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं था, कुछ रहता ही नहीं था। जब विंडो शॉपिंग था, जे हमारे नागपुर महल में ऐसा बहुत दुकान है, कोठी रोड बहुत प्रसिद्ध है, रोज़ एक चक्कर लगाते थे, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। दिल में तो लेना रहता था लेकिन सब विंडो शॉपिंग करके रोज़ आते थे। फिर जब पैसे आने लग गए तब सही का शॉपिंग शुरू हो गया। और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा कॉस्टली जो अच्छा लगता है वो आने लग गया। तो तब मेरी साड़ी ही वो समय में 400 रुपये से ऊपर रहती थी। अरे जो हाईएस्ट मॉडल आ गया मार्केट में, तब मैं एक डॉक्टर करके बड़ी शान थी मेरी। तो वो दुकानदार आते थे, मैडम ये करीना पैटर्न आ गया, वन मैं भी बड़ी स्टाइलिश, हाँ रख दो वगैरह, ऐसा अलग स्टाइल थी। ऐसा मेरा पूरा जलवा ही था वो दिन में भी, भर जवानी में थी। और ऐसी गाड़ी को किक लगाती थी, अच्छी साड़ी पहन के भुर्र जाती थी, सब लोग देखते थे। और जब इसकी जो कंडीशन थी पहली 400 रुपये में घर संसार चलाना, तो पहले मैंने मेरे साड़ी की तरफ देख लिया। फिर शुरू में तो और दूसरी कंडीशन थी 40 किलोमीटर पैदल चलना। तो गाड़ी के सिवा मैं चल नहीं सकती थी। 4 कदम बैरागढ़ गांव का नाम ही बेराहगढ़ था, जहाँ जाने की राह नहीं थी, बस जहाँ रुकती थी वहाँ से 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। करीब 15 साल तक मैं पैदल गया। तो ये बहाने से दूसरी कंडीशन आ गई। तब मुझे 4 कदम भी चलना आता कि नहीं आता मुझे मालूम नहीं था। तीसरी कंडीशन तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, 5 रुपये में शादी, क्योंकि अपने बाप के जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रुपये जाते थे। कम ज़्यादा हो गया तो कितना नुकसान हुआ, 5 रुपये का, इसलिए उससे कुछ लोड नहीं लगा। चौथी कंडीशन ऐसी थी कि भीख मांगने की तैयारी। तो वो कंडीशन में लिए साले भिखारी दिखता है, नई प्रैक्टिस चली, उसकी नहीं चली, अपने लिए चलो कटोरा लेके गाड़गे बाबा तो भी बन जाएंगे। तो फिर ये ऐसी अजब सी कंडीशन जब सुनी तब मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या है ये सब और क्यों। तब तक मैंने बहुत पैसे देख लिए थे, बहुत कमा लिए थे, शान शौक हो गए थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला कि इसमें कुछ फालतू ही है सब।
मैं कान में इतने रुपए का पहन रही है, लेकिन मेरे को कुछ दिखता नहीं ना, क्या दिख रहा मेरे को? तो आगे वाले को दिखाने के लिए मैं ये कान में पहन रही, और मेरे को क्या तकलीफ हो रही, मेरे को टोचता है वो, घड़ी 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 यहाँ से दुख रहा है, तो भी मैं हला रही उसको और लोगों को दिखा रही है ना। तो मेरे को क्या फ़ायदा है? गले में पहनती थी तो कोई ऐसी गर्मी में थी, इधर खुजली, ऐसा करो, इधर पोछो, फिर पाउडर लगाओ, खुजली आ रही, तो ये सब मेरे लिए क्या फ़ायदा है? और जब विनोबा जी इनमें पढ़ने गए तो ये समझा कि भाई खुद जो सही अलंकार है ये तो गुणों के हैं ना, अपना गुण बढ़ाओ, और वही खास अलंकार है। फिर वो भी उसके में अट्रैक्शन कम हो गया, और वो अट्रैक्शन कम होने के बाद में जब गीता प्रवचन, हाँ, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड पहले का था, वो बताया ही नहीं मैंने। तो मैंने पहले 10वीं पास की, और उसके बाद में 12वीं होने के बाद में साइंस लेना था, लेकिन जब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे तो घर के लोग बोले कि क्या पढ़ाना है, बस 10वीं 12वीं हो गई, शादी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे आंख में ना सफ़ेद दाग आए थे, जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, तो बचपन से वो शुरू हो गए और वो बढ़ते गए, और एक जवान लड़की के आंख पे ऐसे दाग आ गए, तो घर के लोगों की भी दृष्टि कैसे रहती है, समाज की दृष्टि कैसी रहती है, बाकी मुझे इतना कि सहेली भी अपने पास में बैठती थी, सरक के बैठती है। मुझे इतना छोटे से घर में सब दुनिया मुझे पता चला कि कैसी दुनिया रहती है। जब पता चला कि खुद के पैर पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक जो 3 भाई थे, 3 भावज थी, सिर्फ माँ बाप छोड़े तो सबके अनुभव इतने कटु हैं कि वो शायद अब बताए तो बड़ा ये हो जाएगा कि हाँ हमने कहाँ ऐसा किया, सबको दुख लगेगा। लेकिन ये एक लड़की के लिए बहुत सही समझ है, सही वक्त के लिए कि मैंने मेरे पैर पे खड़ा रहना चाहिए। और तब तक मैं LLB पास हो गई थी, और LLB पास होने के बाद में मुझे जब कोर्ट में प्रैक्टिकल किए तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ मेरा स्वभाव से जुड़ता नहीं है, और कुछ वकीली पेशा मुझे खूब अच्छा नहीं लगा। और जब वक्त ऐसा था कि शादी तो नहीं होगी, और मैं RSS से बिलोंग करती हूँ, मुझे RSS बिल्डिंग नागपुर में बिल्कुल ऐसी है कि घर आंगन जैसे RSS की संघ बिल्डिंग के पास में ही हमारा घर है। तो मुझे जब से हेडगेवार जी संघ स्थापन हुआ तब से हमारा कांटेक्ट जो है, तो गुरुजी भी हमारे घर में आते थे, बाला साहेब देवरो से, तो मैं छोटी थी, हम दिन भर वहीं पड़े रहते थे। तो इतना कांटेक्ट था कि उसके से जो हवा आती थी वो हमारे घर से ही जाती थी, नहीं हमारा जो बचपन गया उसमें ही गया। तो राष्ट्रीय सेवा समिति का काम किया। जब आड़ी बाड़ी में हम छोटे छोटे थे तो जो कागज़ इधर के उधर ले जाना था, तो हमारी छोटी टीम काम में आती थी, ऐसे फ्रॉक में वो कागज़ ऐसे छुपा के जाना, हमको बड़ा मज़ा लगता था कि जैसे स्वतंत्र सैनिक काम करते हैं, हम भी छाती तान के ऐसे ही चुपके से ले जाते थे, इधर का उधर, उधर का उधर। और हमारा घर इतना पुराना था कि हमारे घर को इतने दरवाजे थे कि किधर से कौन घुसा और किधर से कौन बाहर गया पता नहीं लगता था। जैसे सामने पुलिस का आई भी पकड़ने के लिए इमरजेंसी में, तो पीछे से वो चला भी जाता था, पुलिस इधर ही बैठी रहती थी, इसलिए हमारा घर बहुत इसमें यूज़ में आता था। तो ऐसे माहौल में हम बड़े हो गए, और फिर ऐसा लगा कि अब क्या करें, शादी नहीं हुई। तो विवेकानंद आश्रम, एकनाथ जी रानड़े जी म्हणजे उनसे अच्छा परिचय था, तो वहाँ प्रचार यानी वहाँ जाए ऐसा पूरा तय हो गया। तो फिर LLB मुझे कुछ काम में नहीं आएगा करके मैंने फिर डबल डॉक्टरी में एडमिशन लिए, DHMS में एडमिशन ली, और वो मुझे अच्छा लाइक करती थी मैं वो, तो उसमें अच्छा नंबर से मैं पास हो गई। और जब
फिर खुद का दवाखाना डालने के बाद में अच्छी पोजीशन आ गई। और तो इतना ये संघ, और उसके साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया जब कॉलेज में गई। तब अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, नितिन जी गडकरी है, हम साथ में काम करने वाले लोग, और अभी भी अच्छे, बहुत ही अच्छे संबंध है, और इतना अच्छे हमारी टीम थी। तो फिर नितिन जी को लगे कि मैं राजकारण में घुसूं, उनकी माँ को लगे, लेकिन मैंने तय किया कि राजकारण में जाने का नहीं। तो जाना कहाँ है, तो विवेकानंद इसमें हम प्रचारक जाएंगे। तो फिर कमाने लग गए, और कमाने के बाद में तो स्टाइल ही बदल गई। और फिर जैसे मुझे मेरे पास पैसे आने लग गए, और ख़ास बोले तो जो ये संस्कार हमारे ऊपर हो गया, ये रामकृष्ण मिशन रहे, ABVP रहे, संघ रहे, हमारे जो बौद्धिक वर्ग होता था, इसमें हमको एक सिखाया गया संस्कार हमारे कि इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा। ये बचपन से सुनते सुनते कि ये पूरा कण में घुसा था कि इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा। और सेवा भी कैसे करें, सेवा है यज्ञ कर्म समिधा सम हम जले, कि सेवा करते करते वो हम कैसे समिधा सम हम जलते हैं हमें भी पता ना चले। तो ये संस्कार हमारे ऊपर होते गए। लेकिन बात ऐसी हो गई कि जब मेरे पास पैसे आने लग गए प्रैक्टिस के, तब मेरे सफ़ेद दाग लोगों को दिखने नहीं लगे, तब मैं बहुत अच्छी दिखने लगी। और मुझे और लड़के शादी के लिए और मांगने आने लग गए, हाँ, और प्रपोज करने आने लग गए, कास्ट के, अदर कास्ट के। क्योंकि मैं ऐसी हो गई थी कि जैसे दुभती गाय, हमारे मराठी में बोलते हैं, जो दूध वाली गाय रहती है ना, वो सबको होना रहता है, चाहिए रहती, लेकिन वो कैसी, कम खाने वाली, छोटे सींग वाली, बड़े रहे तो मारेगी, है ना, कम खाने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली। हाँ, और मैंने कमाई ज़्यादा होएगी ना, तो ऐसी गाय सबको होना रहता। तो मैं ऐसी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जैसी हो गई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा, फिर से चाय पोहे होने लगे घर में। मेरे घर के, मेरे पिताजी बहुत, मैं आखिरी की ना, 8-10 इसके बाद में आखिरी की खैर। तो मेरे पिताजी बूढ़े होने लगे, उनको चिंता थी कैसी शादी होती, ये तो इतनी उधम है, कैसा होएगा। तो लड़के देखने के लिए आने लगे तो उनको खुशी हो गई, फिर चाय पोहे चालू हो गए। फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और पहला संघर्ष मेरा हुआ कि जब चाय पोहे लेके जाओ और सबको वो जो शेबड़े शेबड़े पोट्टे रहते थे ना, उनके पैर पड़ना पड़ता था, क्योंकि लड़के वाले हैं ना, तो उनके पैर पड़ो, तो बड़ा मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे बड़े लोगों को तो पैर पड़ना कोई ये नहीं, लेकिन एक सिर्फ वर पक्ष के वो पोट्टे उनके पैर है तो अपन नहीं पड़ेंगे। फिर मैंने घर में बता दिया कि मैं कुछ ये करूँगी नहीं। तो बोले तेरा कुछ लफड़ा होगा। बोले लफड़ा तो जमा नहीं, लफड़ा होता तो काय को बताती, मैं खुद ही कर लेती। फिर ऐसा तय हुआ कि दवा मेरे को देखना है ना, तो मेरे दवाखाने में आओ और देखो। फिर 1-2 लड़के दवाखाने में भी आए, तो मैं पहले बता दिया कि भाई ये जो दुकान दिख रहा ना, ये मैं कभी भी बंद कर सकती, और छाती पे बैठ के खाऊंगी, पटता तो बोलो। फिर उधर से भी नहीं होने लग गया, प्रॉब्लम आने लग गया। कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ये लड़की वाले लड़कों को देखने, लड़की को देखने के लिए आते लड़के वाले, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि लड़की लड़के को देखने को जाए। तो फिर मैंने ये तय कर लिया कि ये फालतू धंधा कुछ नहीं, हम लड़का देखने जाएंगे। तो फिर दोस्तों को बता दिया कि भाई ऐसा है कि मुझे शादी करना है और मेरे लिए कुछ लड़के होंगे तो बताओ। सब फ्रेंड्स को बता दिया। और बाबा आमटे जी का जब भारत जोड़ो अभियान तुरंत ही ख़त्म हो गया था,
और उसमें से बहुत लोगों ने अपना जमा लिया था उसमें, तो बाकी कुछ खाली भी बचे थे। तो फ्रेंड्स को बोला कि देखो भाई, मराठी में लग्नाड़ू ये नया शब्द प्रयोजन मैंने पहली बार किया कि मेरे लिए लग्नाड़ू लड़के होंगे तो देखो कुछ, यानी जो चाहते हैं शादी करने के। तो फिर उधर से लिस्ट आने लग गई। तब तक तो मेरी रहन सहन इतनी मस्त थी, मेरा जलवा ही था, मेरे बाल तो घुटने के जितने बाल थे, और साड़ी तो क्या बात है, स्लीवलेस ब्लाउज़, साड़ी पर लिपस्टिक बदलता था, और चप्पल तो मेरे पूरे नागपुर भर से मैंने ढूंढ के चप्पल निकाली थी कि मेरी चप्पल ही देखे कोई। और ऐसा था, और ऐसे तैयार होके मैं, वो जो पता रहता था ना, वो ये लड़का यहाँ है, तो मैं वो पते पे गाड़ी लेके धाड़ गई। फिर बेल बजाने का और खुला, तो फिर सीधा बोलने का कि हाँ मेरे को ऐसा पता चला कि आपको भी शादी करना है और मुझे भी शादी करना है, और देखते अपना कुछ जुड़ता क्या। तो अब एकदम से धड़का धड़की होके इतने दरवाजे में ऐसी कोई लड़की आए, वो भी स्लीवलेस, इतनी हेयर स्टाइल और ये ऐसी, तो वो बेचारा लड़का, मैंने जैसे पुराने ज़माने में हमको बताया जाता था कि देखो लड़के वाले आए तो ऐसा 2 पदर पे ऐसे पल्लू लेने का, नीचे देखने का, ज़्यादा ऐसे करने का नहीं, शिष्टपना बताने का नहीं, ज़रा सभ्यता शिष्टता से रहो। तो वैसी लड़कों की बारी आ गई थी। एकदम धड़कने के बाद में वो बेचारे एकदम शर्मा जाते थे, कैसा मुझे नीचे ऐसा करके। अब उनको पल्लो नहीं रहता था, साड़ी का पल्लो पदर नहीं रहता था, तो बेचारे कैसा चाड़ा करेंगे, तो शर्ट के बटन के साथ ऐसा चालू रहता था। और उस वक़्त मोबाइल नहीं थे, नहीं तो इतनी सुपर शूटिंग होती थी कि पूरी दुनिया भर वायरल हो जाती थी। तो कैसे वैसे लड़के बोलते थे आओ भाई अंदर, और कैसे वैसे बातचीत ऐसा। अब पद्मश्री नहीं देना है, भारत रत्न देना है। फिर कैसे वैसे आओ बोले, बैठो बोले, और बाकी लोगों जैसे मैं घर कैसा है वगैरह वगैरह, ऐसा किचन अपना थोड़ा सा देख लेती थी कि कैसा घर है भाई, घरदार कैसा है, भाड़े का है कि घर का खुद का है, ये वो। तो फिर उधर से तो जवाब तो पक्का ही था, वहाँ से नहीं आने लग गया, प्रॉब्लम हो गया। अब करना तो क्या करना, लेकिन मैं इतनी जिद्दी लड़की हूँ, एक बार ठानी तो ठानी, बोली नहीं लड़के देखना तो जारी रखेंगे। तो मेरा एक असिस्टेंट था, तो उसने बताया कि एक भाई लड़का है, तो मेरे भी कान तेज हो गए, लड़का है, हाँ बोले हमारा दोस्त है। तो बोले नाम क्या है, बोले रवि कोल्हे। क्या पढ़ा है, तो बोले एमडी कर रहा है। अरे बोले पढ़ा लिखा दिखता, काम का है। तो बोले क्या कैसा, किधर रहता, क्या करता। बोले उसकी 4 कंडीशन है। साला मराठी में अटी तटी का बोलते हैं, तो खास बोले तो मराठी भाषा इतनी सुंदर है, कुछ कुछ मराठी शब्द हिंदी में बोले ही नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा अटी तटी वाला लड़का है, तो मैंने पूछा पहली क्या है, शर्त क्या है भाई पहली। उसने बोला पहली शर्त बताई 400 रुपये की, घर संसार चलाना। मैंने पहली बार साड़ी तरफ देख लिया, 400 रुपये के ऊपर ही थी। दूसरी क्या है शर्त, बोले 40 किलोमीटर पैदल चलना। मैंने मेरे गाड़ी को देख लिया। तीसरी बोले 5 रुपये में शादी। मैंने वो ठीक है, अपने भी बाप का कुछ नहीं जाएगा, गया तो गया, कितने जाएंगे तो 5 ही रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चौथी अट तो भीख मांगने की तैयारी। तो ऐसी मुझे पता चला। स्मिता ने सब बातें तो कबूल कर ली। एक फिर 5वीं कंडीशन आई, ये शटर बंद करना है, आपका जो क्लिनिक है वो बंद करना है, क्योंकि वो आगे जाके लोभ का कारण बन सकता था, मोह का कारण बन सकता था कि 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली मिल रहे, तो यहीं रहो नागपुर में, काय के लिए बैरागढ़ जाना वापस। लेकिन पहले फिर उन्होंने वो 5वीं कंडीशन भी कबूल कर ली और हम लोग शादी करके वहाँ गए। शुरुआत में स्मिता को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि पैदल चलना एक बात थी। रुको ना, मैं बता।
तो बात ऐसी हुई कि जब मैं है ना गीता प्रवचन पढ़ रही थी, तो विनोबा जी का जो गीता प्रवचन है बहुत सुंदर किताब है। तो उसमें पढ़ते पढ़ते हुए जो है ब्रह्मचर्य तक पहले स्वधर्म, फिर मेरे को बहुत प्रश्न पड़ा कि मेरा स्वधर्म क्या है क्या नहीं, और उसमें जो स्थितप्रज्ञ की लक्षण है ये करी। तो फिर जब सोची मैंने 2 महीने ये कंडीशन पे मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है 400 रुपये मैंने पहले लोभ मोह छोड़ना पड़ेगा, भीख मांगना है ना, मुझे मेरा ईगो जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तब ये जो कंडीशन है, ये जो रखने वाला ये कुछ सादा सुदा इंसान नहीं दिख रहा, ये ज़रा अलग तरीके का दिख रहा है। तो ये क्या मैं पूरा कर सकती हूँ या नहीं? तो खुद का अभ्यास करने के बाद में मुझे जैसा मेरे अंदर से आवाज़ है कि ठीक है, मैं और मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई भी चैलेंज में नया रहे तो मैं स्वीकारती हूँ और पूरा करती हूँ। तो ठीक है, अपन कर सकेंगे। तो फिर इससे बातचीत करना था, तो अभी इसको बताए कौन? तो ये जहाँ सोशल वर्क करते थे वहाँ मैं चुपचाप से जाने लगी, इनको जरा देखती थी कैसा है लड़का, क्या है ऐसा वैसा। तो इसको पता नहीं था, इसको मैं वॉच कर रही करके, लेकिन ठीक था कि अच्छे स्टूडेंट्स थे, अच्छी अच्छी लड़कियाँ थी कि ऊपर मुंडी करके देखता नहीं था। नहीं ठीक है, अपने को कोई आगे धोखा नहीं। फिर ऐसा करके इसको पसंद करने के बाद में अभी इसको बोलेगा कौन? मेरे दोस्त को बोला कि ठीक है भाई उससे बात कर। उन्होंने पहले हाथ ऊपर किए, भाई भले तू ऐसी और वो फटे कपड़े पहनने वाला, तुम्हारा तुम देखो बोले। फिर ऐसा तय हुआ कि अमुक अमुक दिन में धूपकाले का मई महीना, तो ये लड़का तुम्हारे हॉस्पिटल में आएगा। तो ठीक है, उस दिन फिर पसीना पोंछते पोंछते डॉक्टर को ले वहाँ पहुँचे, और मैं देख रही मेरी केबिन को ऐसा अच्छा कांच था, बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखता था, मेरे को पहला पूरा दिखता था। हम होम्योपैथी में कीन ऑब्जर्वेशन करते कि कैसा तो मेरा कीन ऑब्जर्वेशन चालू था। तो उस दिन क्या हो गया कि इतनी जवान पोरियों दवाखाने में थी, तो ये आ रही दवाई लेके जा रही, वो आ रही, 2 घंटे ये बैठा रहा है, ये होंगी क्या, ये होंगी क्या। आखिर में आखिरी की भी लड़की हो गई, सी प्रश्न चिन्ह थे। फिर मैंने बड़ा स्टाइलिश, हाँ अंदर आओ ऐसा बोला। फिर अंदर आए के बाद में मुझे ऐसा बताया कि यहाँ कोई मुझसे शादी करने के लिए ये लड़की कुछ मुझे मिलने वाली है। अब मेरा भी पहला टाइम था, मुझे भी समझे नहीं कैसे बात करूँ। तो फिर तो पहले आओ बैठो हो गया, फिर हवा पानी की बात की। मैंने साला हवा पानी की बात कहाँ तक करें, बोले मुद्दे को हाथ डालो। फिर मैंने बताया कि वो ऐसा है कि वो जो शादी के लिए लड़की मिलने वाली थी ना, वो मैं छूँ। तो ये स्लीवलेस देखे ये रॉन्ग नंबर लगे जैसा लगे और उठने लगे। मेरी साला ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं बोली बैठो बैठो। फिर लोटा ग्लास पानी था, मैंने पानी दिया, मैंने पानी पियो पियो पहले, क्या फिर पानी वानी पिए कि मैं बोली बैठो, मैं कहीं गले नहीं पड़ी, पहले सोचो अपन बात करेंगे और फिर पक्का करेंगे। फिर ये बैठे, फिर हमने बात की, इतनी इन्होंने इनके लफड़े बताए, मैंने मेरे लफड़े बताए। सब बताने के बाद में ये तय हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकता है, कि तो अभी जो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यानी ये कुछ तय नहीं कि आज के बाद में मैं इनके साथ रहूँ या नहीं है, कोई कंडीशन ये नहीं है कि मैं कभी भी फ्री हो सकती हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमने करने का तय किया। और फिर बात आई कि भाई अब घर के लोगों को कैसा बताए। तो इन्होंने इनके बहन का बंगला था, बहन के घर लेके गए। अब बड़ा हाल वहाँ मेरे को बिठाया, 4-2 चेहरे मेरे को ढुक के गए। अंदर से आवाज गए रहे थे, भैंसी जैसी चे। बोले मैं खाते पीते अच्छी घर की थी कि 4 दिन कोई खाना ना दे तो पता ना चले। तो अंदर से आवाज़ आया, अरे ये तो भैंसी जैसी छे। बोले बहुत सुंदर लड़की देखेंगे बोले हम। अब मैं कहा को मैं सुनी नहीं सुनी कि अब इनको 100 लड़कियां देखने के बाद पहला लड़की ने हो बोला था, तो ये भी उतावले हो गए थे। हमारे मराठी में म्हण है कि उतावळा नारदा से गुडघ्याला बाशिंग, यानी ये जो बाशिंग रहते हैं ना,
एक गुड़गे को बांध के वो नवरदेव तैयार रहता है, तो ऐसे ये तैयार थे, तो इन्होंने भी वहाँ से सट के हम दोनों वहाँ से सटक गए। अब बारी थी मेरे घर की। अब मेरा बाप बोले तो बहुत मुझे 3 बजे से पढ़ते रहते थे, रात के 3 बजे उठ के जो पढ़ना उनका बहुत, उन्होंने किताबें भी लिखी, ये लिखी, तो हरदम पढ़ना। तो उनका चश्मा इधर से ऐसा नाक के नीचे ऐसा रहता था, और हम गए कि ऊपर से देख के हमसे बात करते थे ऐसे। और फिर मैं गई, मैंने बोला, दादा बोलते थे हम, दादा, मैं बोली ये लड़का ऐसा बोलता कि मेरे से शादी करता है। तो मेरे बाप ने ऐसा चश्मा लेके खूब देखा, 2-3 मिनट देखने के बाद में फिर बोले, क्या नाम क्या है, बोले लड़के का। अब ऐसी मुझे गम्मत ऐसी है कि मेरा जो सरनेम था वो मांजरे था। अब हिंदी तुमको मांजरे यानी बिल्ली, मराठी में मांजरे, मराठी लोगों को समझेगा ये जो जानते हैं। तो मांजरे सरनेम था, स्मिता मांजरे। तो मेरी जो 10वीं तक सहेली थी वो कावड़े थी, कावड़े यानी कौवा, कावड़े। दूसरी गाढ़वे थी, गाढ़वे यानी डोंकी। तो ये एक वाघ थी, वाघ यानी टाइगर। तो ये जो ऐसे सरनेम हमारे मराठी में बहुत कॉमन है। तो ये ऐसी, तो मेरे पिताजी हरदम बोलते थे, तेरे को यही अड़नाम वाले सरनेम वाले सहेलियाँ मिलती है। बोले क्या करूँ भाई, मिलती तो अपन थोड़ी बदलाएंगे, उनके आदमी हम देखेंगे। तो फिर जब मेरे पिताजी ने पूछा, हाँ नाम क्या लड़के का, तो मैं ना रवि कोल्हे, कोल्हे यानी फॉक्स। फिर मेरे पिताजी ने देखा खूब, हाँ बोले ऐसे ऐसे सरनेम के लोगों के साथ तेरी बड़ी अच्छी जुड़ जाती है बोले। तो मुझे ये लगा ही नहीं कि इतनी इजीली शादी के लिए हो जाएगी। और फिर हम वहाँ से जो सटके, तो 2 दिसंबर 88 में, वो भी भूल गई मैं। तो 88 में हमने कोर्ट में ये दिया, फॉर्म भरा, और हम शादी होके मेलघाट जंगल जो है पूरा शेर के लिए और प्राणियों के, जंगली प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ हम 2 मांजरे और कोल्हे 2 प्राणी वहाँ पहुँचे। तो ऐसी हमारी शादी की शुरुआत हुई। लोगों ने हमको वहाँ अच्छा घर बना दिया। बाकी रवि अभी घर बना तो दिया लोगों ने, तो उसको संवारना था। तो जो देहात के काम है, स्मिता को शहर के सब काम आते थे। ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, संगीत, गिटार थी, सितार थी, फिर सभी पैराशूट, पैराग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, एयरविंग में थी, एनसीसी में थी तो कॉलेज में। और उसके बाद में शहर की बातें आती थी, लेकिन देहात की जो बातें हैं मैं विदर्भ में फायरिंग में बहुत, मैं फर्स्ट थी। तो प्राइवेट में इनको आप अनुभव पूछ सकते हो। तो कभी कभी उनके साथ फायरिंग हुआ, कभी कभी कुछ फायरिंग हुआ। माइक पे तो नहीं बता सकते। एक अनुभव बता सकती हूँ। एक इंटरव्यू, जैसे मेघा पाटकर थे, प्रकाश आमटे और उनकी मिसेस थी। अब एक उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आप कभी लड़ते हो। अब मेघा पाटकर को बेचारी को आदमी यानी अकेली रहती, तो वो कुछ लड़ने के बारे में तो कुछ चुपचाप रही। अब हमारे मंदाताई बहुत शाय है, वो कुछ एकदम से ऐसे बात नहीं करती। अब मेरी बारी आई, तो अभी आपके में कुछ लड़ाई होती है, तो ये मुझे बोलते वो सुरेश का किस्सा बताओ ना। तो जैसे हम दोनों रात में खूब लड़े, छोटा सा गांव ना, इतना सा मुट्ठी भर गाँव, तो पूरे गांव भर बात भी फैल गई कि भाई हमको कोलू कोलन्नी बोलते, कोलन्नी और कोलू डॉक्टर का बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया। पूरे गांव भर बात में, पूरी चर्चा, छोटे गांव में चर्चा का विषय बहुत इतना सा हो गया कि चालू किसकी लड़की भगी, क्या हो गया। तो फिर गांव भर कोलू कोलन्नी का झगड़ा हो गया, कोलू कोलन्नी बहुत झगड़ा हो गया, मुझे इतना हुआ तो हाथ भर। तो फिर दूसरे दिन पोस्टमैन आया, तो पोस्ट वो पत्र देने के बाद में बोले आप तो इतने पढ़े लिखे हैं और आप भी लड़ते हो। मेरा दिमाग पहले ही रात भर से झटका ही हुआ था। तो मैंने बोला कि लड़ने का ठेका क्या तुमने लेके रखा है क्या तूने ठेका लेके रखा है क्या मेरे लड़ने का। और मेरे को लड़ना है तो मैं किससे लड़ूँ, तेरे से लड़ूँ।
मेरे आदमी से नहीं लड़ूँ तो फिर वो भाग गया। तो फिर ये बोलते कि नहीं नहीं हमारा झगड़ा होता है ना तो हम रात में एक साथ खाते हैं। बोले इसका कारण ये है कि मैं पहलवान की बेटी हूँ और मैं इजीली 50 किलो तो मैं ऐसी इजीली उठा के फेंक सकती हूँ। तो इसलिए हमारे झगड़े जल्दी ख़त्म होते थे। तो शहर की बातें कैसा पानी का नल होता है, देहात में कुएं से पानी खींच के लाना पड़ता है, फिर घर को गोबर मिट्टी से लीपना पड़ता है, दीवार को भी गोबर से लीपना पड़ता है, उसके बाद में चूल्हा जलाना पड़ता है, लकड़ा लाना पड़ता जंगल से। तो ये सब बातें उनको शुरुआत में जमती नहीं थी, लेकिन वो हर चीज़ सीखती गई। कंप्लेंट कभी नहीं की कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना है। वो सीखती गई और एक कला के दृष्टि से सीखते गई कि ये कला है। ये क्या कहते, सुपड़े को क्या कहते हैं जिससे अनाज पछोड़ते हैं, हस्किंग। हाँ, तो वो भी चीज़ें वो सीखी। और धीरे धीरे गांव वालों ने, गांव के जो लेडीज़ थे उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि डॉक्टरनी भाई तू अब हमारे परीक्षा में पास हो गई, सब काम तेरे को आने लग गए, अब कोई धोखा नहीं रहा कि तू वापस जाएगी। लेकिन अभी भी उसको डॉक्टरनी भाई नहीं कहते थे। प्रॉब्लम ये था अब कि ये इतना सा छोटा सा गांव था, बाकी वहाँ बाल कटाने वाला नाई, क्या बोलते तुम्हारे इसमें मालूम नहीं, नाई बार हाँ, तो नाई नहीं था, तो इसकी कटिंग मेरे को करना पड़ता था शादी हुई जब से। तो वो कंडीशन था मेरी शादी जिंदगी में सबसे खुशी के दिन वो रहता था। वो भी कंडीशन था, शेविंग करना पड़ेगा बोल के? नहीं, कंडीशन नहीं था। तो मेरे हाथ में कैंची रहती थी और डॉक्टर कोले बैठे रहते थे और मैं हाँ ऊपर मुंडी तो ऊपर होती थी, नीचे देखो, अरे देखो इधर देखो, तो नहीं तो मेरे हाथ में कैंची थी। यानी जिंदगी का मजा लेना है तो अपने अपने आदमी की कटिंग अपन ही करो। तो रेज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं था गांव में और एक शेर ने फाड़ा हुआ पेशेंट लाया। स्मिता को पूछा कि तुमको टाका देना आता क्या? तो इसने कहा हाँ आता है। और पेशेंट को लेके आए तो एक झोली में पूरा खून से भरा हुआ। अब शेर का ऐसा है कि 3-4 नाखून एक समय पे लगते हैं, पूरा फट जाता है। इधर से उसने हाथ घुमाया तो फट गया। तो उसको पूरा जंगल में शेर के साथ झगड़ा हुआ था उसका, ये शिकार को गए तो। और उस पेशेंट को स्मिता ने 350 से 400 टाके दिए और उसकी जान बचाई। उसके बाद में स्मिता को डॉक्टर बोलने लग गए लोग। उसके पहले उसको नर्स बाई बोलते थे, क्योंकि बाई डॉक्टर हो सकती है, लोगों को पता ही नहीं था ना। बाई बोले तो नर्स बाई होती थी, सफ़ेद साड़ी पहनने वाली नर्स बाई, ऐसा एक लोगों का मानना था। लेकिन वो होने के बाद में स्मिता को डॉक्टर समझने लग गए। बाद में ऐसा हुआ कि जैसे हम निमोनिया के, डायरिया के पेशेंट बचाने लग गए तो लोग हमारे पास तुअर के, चने के मरे हुए झाड़ लेकर आए, पेड़, कि डॉक्टर साहब ये मर रहा है। वो समझते थे कि ये बहुत ही होशियार आदमी है, इसको सभी आता है, जब बच्चे को बचा सकता है तो झाड़ को भी बचा सकता है ना। लेकिन अपना साइंस जो है, अपने को जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ ह्यूमन ही पढ़ाते हैं, एनिमल भी नहीं पढ़ाते, प्लांट भी नहीं, प्लांट तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इस तरीके से, तो उस समय फॉर्चुनेटली मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, मेरा एमडी हो गया था। तो मैं वो प्लांट्स लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया, उनसे पूछा और लोगों को लाके समझाने लग गया। तो लोग बोले कि ऐसा नहीं होगा, आपका हम मानेंगे तो फिर हमको अगर जो आ रहा है वो भी नहीं आया तो हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो आप ऐसा करो कि हम आपको खेती का एक पीस देते हैं, टुकड़ा देते हैं, आप करके दिखाओ। तो ये करके दिखाओ के चक्कर में हमने एग्रीकल्चर शुरू किया और एग्रीकल्चर शुरू हुआ, वैसी वैसी लोगों के साथ में ज़्यादा डायलॉग होने लग गया, उनकी मुसीबतें ज़्यादा समझने लग गई, बारिश का महत्व समझने लग गया। उसके पहले जब बारिश होती थी तो मेरे पैर को, मेरे कपड़ों को कीचड़ लगता था, मुझे हर्ट होता था
कि क्या बारिश शुरू हो गई, अब कपड़े खराब होंगे, पैर को कीचड़ लगेगा। लेकिन जैसे बारिश खेती करना शुरू किया तो समझ में आया कि नहीं, पैर का कीचड़ धुल सकता है, कपड़े का कीचड़ धुल सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और बारिश अगर नहीं हुई, कीचड़ लगता है इसलिए, तो कोई भी फसल नहीं होगी, पूरा एरिया रुइन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो समझ उसके बाद में आई। यानी देखिए, मैं उस समय 26-27 साल का था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि बारिश का क्या महत्व है। मन का कीचड़, वो जो पहले कीचड़ जो लगता था वो मेरे मन को लगता था, बाद में जो लगता था वो कपड़ों को लगता था। कपड़ों का धुल सकता है, मन का नहीं धुलता। तो आदमी ने हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे मन को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब कुछ लोगों के साथ में वहाँ अनटोवर्ड इंसिडेंसेस हुए, लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर अटैक किया, स्मिता के ऊपर अटैक किया, स्मिता का हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो वो मेरा हाथ यहाँ से फिजिकल पेन हुआ, वो फिजिकल पेन हुआ, लेकिन मेंटल पेन हमने उससे कारण नहीं होने दिया। ये चीज़ एग्रीकल्चर से ही हमको सीखने को मिली थी। तो वो मुझे हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, एक तरीके की हमारी वो खोज ही है, इसलिए हम वहाँ टिक पाए, रह पाए। नहीं तो वो गांव छोड़ के चले जाते थे। कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं कि जो गांव में जाते हैं, बहुत डिवोशन से जाते हैं, कमिटमेंट से जाते हैं, लेकिन थोड़ा अनटोवर्ड हो गया कि वापस शहर के ओर आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मन और अपना शरीर ये अलग अलग फील करे। अगर हम वो फील करने लग गए तो फिर आसान होता है। गर्मी होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, ठंड होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, कितनी ठंडी, तो वो ठंडी शरीर को लगती है, वो मन को मत लगने दो। ये बात मुझे आपको बताना है। दूसरी एक बात, जब हम कॉलेज में थे तो साइकिल यात्रा के लिए गए, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकिल यात्रा, साइकिल से घूमे नागपुर से भोपाल, भोपाल से वापस। तो जब रोड से हम पहले दूसरे दिन निकले आगे, जब तक प्लेन था तब तक ठीक था, आगे पहाड़ी दिख गई, तो पहाड़ी का सोच के हम परेशान हो गए कि पहाड़ी है। लोगों को, आने वाले लोगों को पूछते थे कि कितने किलोमीटर वो पहाड़ी है, तो कोई बोलता था 8 किलोमीटर है। तो हम बोलते रहे बाप रे, अभी 8 किलोमीटर अपने को पैडल मारना है, चढ़ाना है। उस समय गियर वगैरह की साइकिल नहीं थी, सादी साइकिल थी, तो मुसीबत होती थी। लेकिन उस बीच में एक खोज लगी कि हम नागपुर से निकले वैरायटी स्क्वायर से, और फिर नागपुर वैरायटी स्क्वायर वापस आएंगे, तो हमारे टोटल यात्रा में कितनी चढ़ाई होगी बताइए कोई। नागपुर से निकले और फिर नागपुर ही उसी जगह पर आएंगे, तो टोटल यात्रा में कितनी चढ़ाई आएगी। चढ़ाई यानी ऊंचा जाना, हाइट पे कितना आएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे भी आएंगे। तो ये उसके पहले नीचे आने के बारे में सोचते नहीं थे, पहले चढ़ाई को देखकर घबरा जाते थे, तकलीफ होती थी, फील करते थे उसको कि अरे बाप रे 8 किलोमीटर चढ़ना है। लेकिन बाद में ख्याल में आया कि 8 किलोमीटर उतारी भी तो कहीं तो भी आएगी है? जब चढ़ाई आ गई तो उतारी आती है। जिंदगी में ऐसे ही होता है कि जब दुख आता है तो दुख को लेकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन उसी के साथ में सुख भी तो आता है। वो सुख के बारे में हम सोचते ही नहीं है कभी, हम दुख को ही देख के दुखी होते हैं। वैसा सुख को देख के भी सुखी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में जब एग्रीकल्चर शुरू किया तब ख्याल में आया कि लोगों को 3 रुपये मजदूरी थी। तब गवर्नमेंट कंट्रोल के शॉप में 5 रुपये किलो से गेहूं मिलता था, यानी 3 रुपये में उसको आधा किलो करीब गेहूं मिलता था। उसका पेट भरेगा क्या फैमिली का? अगर उस एक आदमी ने दिन भर भी काम किया तो फिर उनको, फैमिली को कपड़े भी लगेंगे, उनको बीमार हो गए तो दवा भी लगेगी, बच्चों को स्कूल के सामान भी लगेगा, किताबें भी लगेगी, हर चीज़ लगेगी ना परिवार बोले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर हमने गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी उसका स्टडी किया। उसमें वहाँ 3 रुपये के बजाय 30 रुपये वेजेस थी। तो हमने गवर्नमेंट के साथ में डील करके वो किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में लोगों को काम मिलेगा यह शुरू किया। हम जब गए थे तो हमारे गांव में टैंकर से पानी आता था। बारिश में बहुत बारिश गिरती है वहाँ, 1400-1500 मिलीमीटर बारिश होती है,
लेकिन वो सब बारिश बह जाती थी, वो रुकती नहीं थी। और धुपकाले में पीने को पानी नहीं मिलता था गांव को, ये पोजीशन थी। तो वो जब रोजगार हमी का काम हमने शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का EGS बोलते हैं, अभी MREGS हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो MREGS का काम शुरू किया तो लोगों को 30 रुपये रोज मिलने लग गया। शुरुआत में रास्ते बनाने का काम किया, बिल्डिंग बनाने का काम किया, स्कूल के बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लेकिन बाद में फिर ख्याल में आया ये काम तो खत्म होने वाले काम है, हमको वाटरशेड का काम करना चाहिए, हमने कुएं खोदना चाहिए। कुएं खोदने से हमारा परमानेंट इनकम बढ़ेगा एग्रीकल्चर से, और वाटरशेड का काम शुरू किया कि पानी जहाँ का वहीं पच जाए। तो उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली आज ये मिला, उस समय सोच नहीं थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वाटरशेड का काम करने के कारण आज हमारे यहाँ कुएं ऊपर तक भरे रहते हैं। हमको पीने के पानी की अब दिक्कत नहीं रही, अब वहाँ टैंकर की ज़रूरत नहीं रही। और आज धुपकाले में 10 HP का 15 HP का पंप 24 आवर्स चलता है, उसके कारण हम धुपकाले की फसल बो सक रहे हैं और हमारा इनकम बढ़ गया है। पहले हम सिर्फ बारिश की फसल लेते थे और ख़त्म हो जाता था पानी, लेकिन वाटरशेड का काम करने के कारण धुपकाले की भी फसल भी हम ले सकते हैं और धुपकाले में भी हमको प्रॉफिट एग्रीकल्चर से मिल रहा है। तो ऐसी कई छोटे छोटे बातें हुई। और आज एग्रीकल्चर में आने के कारण आज विदर्भ में फार्मर सुसाइड करते हैं, लेकिन हमारे मेलघाट के फार्मर सुसाइड नहीं करते। ये दूसरा एडवांटेज मुझे लगता है, जब मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ कि पिछले 37-38 साल में क्या हुआ चेंज, तो आज वहाँ फार्मर सुसाइड नहीं है, जो कि विदर्भ का एक मेजर इशू है। उसी तरीके से अंधश्रद्धा ने बोला या बड़ी दशा। मित्रों, जब मैं वहाँ गई तो मैं तो जैसे मैंने कल पूछा, हाँ, तो पूछा कि यहाँ का हैदराबाद का क्या फेवरेट है, तो कोई ने मुझे बताया कि बिरयानी। तो मैं भी नॉनवेज खाती थी पहले, लेकिन बात ऐसी हुई कि हम दोनों शादी होके गए, तो इन्होंने शादी होने के पहले वहाँ दारू और ऐसी जो वहाँ डॉक्टर नहीं थे ना, तो नवस यानी क्या बोलते हैं नवस को, भगवान को मन्नत करते थे लोग। मन्नत तो भाई मेरा बच्चा अच्छा होगा तो मैं मुर्गा चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ाऊंगा, ऐसी मन्नत करते थे। तो 5 फीट के मुर्गी की मुंडी का ऐसा ढीक होता था। तो इन्होंने जैसे विनोबा जी बोलते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म करना है तो उसको अच्छी चीज़ एक डायरेक्शन अलग देना चाहिए, तो इन्होंने खेल का उसको डायरेक्शन दिया था। वो वॉलीबॉल कबड्डी के उसको खेल जोड़े थे और धीरे धीरे वो कम कम होते आ रहा था। तो और फिर जब मैं गई तो मैंने ऐसा देखा कि एक बकरी का बच्चा अच्छा खेल रहा है, और खेलता है तो मैं मन में बोली कितना सुंदर खेल रहा है, ऐसा बोल ही रही तो एक ने ऐसी छुरी रब से उसकी मान पे ऊपर चलाई तो उसका कूदना बंद हो गया और उसकी मुंडी अलग थड़ कूदने लगी और शरीर थड़ अलग कूदने लगा। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं बोली ये ऐसा कैसा है, और मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई। और फिर इनको पूछा ये तुम तो इतनी बातें करते हो गाड़गे बाबा की, गांधी, विनोबा, अमुक ढमुक टमुक, तो ये तुमको कैसे चलता है? तो बोले देखो, जब हमारी खुद की तैयारी हो कि खुद की मान हम दे सकते, जैसे गाड़गे बाबा बोलते थे ना कि उसको मत काटो मुझे काटो, तब ये बंद हो सकता है। ये तुम कर सकती हो क्या? तो बोले हाँ कर सकती हूँ। और उसके बाद में साल भर हमने वो उसका क्या बोलूं त्याला प्रचार किया हमने कि भाई बलि अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये बोले पहले तू तो खाती, पहले छोड़ दिया आज से क्या। और साल भर हमने ये करने के बाद में फिर जब अगले साल एकादशी के टाइम पे वो बलि का ये आता है, तो वो साल से करीबन 91 जब से वहाँ एक बूंद भी नहीं गिरा, तो जब आज तक एक बूंद भी नहीं गिरा। कि जब बोला कि भाई ठीक है कि उसको तुमको इतना खुशी है तो हमको काटो ना क्या। और जो वहाँ और ये इतने चिवट है कि जब एक डॉक्टर्स का कैंप लिया था हमने वही मेले में, तो मैं उसमें लगी थी तो ये गायब हो गए। तो ये गायब पंजे वहाँ बैठे थे वो पायरी के ऊपर, तो रात तक मुझे पेशाब को भी नहीं उठे।
कि लोग आते थे पहले कि इनको देखते थे वापस जाते थे, यानी इतना ये करने के बाद आज तक वहाँ एक बूंद भी नहीं गिरा वहाँ। स्मिता वहाँ तो आई, वहाँ रहने लग गई, लेकिन फिर भी मेंटली वो वहाँ नहीं थी। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि वहाँ के शहर के प्रैक्टिस के उसके पास 50,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट था, तो वो मुझे वो नहीं दे रही थी। उसको लगता था कि ये तो खर्चा कर देगा, पेशेंट को दवा गोली बांट देगा, उसने वो 50,000 अलग से रखे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास एक बिना बच्चा होने वाली गाय थी, तो वो गाय थोड़ी मारती थी, तो स्मिता, गांव के लोग मुझे कहते थे कि इसको बेच दो, ये जनती भी नहीं, फलती भी नहीं, दूध भी नहीं देती, बच्चा भी नहीं देती, तो इसको रखना क्या काम की बात है। तो मैं लोगों का तो सुन लेता था, लेकिन एक दिन घर को जब आया, सुबह की बात थी, 8 साढ़े 8 बजे की, ऐसे बारिश की शुरुआत थी उस वक्त, तो स्मिता ने भी वही मुझसे कहा कि रवि ये गाय को बेच दो। मैं बोला क्यों, इसको बेच के क्या मिलेगा? 600 रुपये तब गाय की कीमत थी। मतलब 600 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसको आज हमको जो मिल रहा है, उसकी जो हम सेवा कर रहे हैं, गीता का तत्वज्ञान क्या बताता है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान। हमारा काम है कर्म करना। दूध के और बच्चे के लिए थोड़ी हम उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। अब हमारे किस्मत से वो बांझ है, यानी बच्चा नहीं देने वाली है, तो हमारी किस्मत है, हमको उसको संभालना ही पड़ेगा। उसके ऊपर उस बाबत हमारी करीब 4 घंटे बहस हुई दोनों की। स्मिता को मैंने बताया कि देखो अपन 1 रुपया लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका लोगों को कोई महत्व नहीं है। अपन 100 रुपये लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम्हारी नागपुर में जो प्रैक्टिस थी 10,000 रुपये महीने की, वो छोड़ के हम यहाँ 400 रुपये के लिए क्यों आए? हाँ, अगर गाय को 600 रुपये के लिए बेचना है तो बेटर है कि हम वापस चले जाए और 10,000 रुपये की नागपुर में तुम प्रैक्टिस करो। मेरे गांव में मेरे क्लासमेट जो थे, मैं जहाँ का हूँ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया शेगांव के पास में मेरा गांव है, तो वहाँ मेरे दोस्त लोग 50-50 लाख रुपए साल भर में कमा लिए थे, और हमको 1 साल तब हो रहा था वहाँ जाके। तो मतलब उन लोगों ने 50 लाख रुपए कमा लिए, अपन वापिस जाएंगे ना, ये 1 रुपया लेके क्यों प्रैक्टिस करेंगे? तो उस बाबत हमारा जो डिस्कशन हुआ, तो सुविधा के समझ में आया कि गीता का तत्वज्ञान जो है वो हम फॉलो करना चाहते, और उसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं। हम ये नहीं कि भाई हमको क्या मिलेगा इसमें से, हमको सिर्फ कर्म करना है, कर्म के रास्ते पे चलना है। वो स्मिता के फिर समझ में आ गया, और खाना खाने के बाद में स्मिता ने वो जो FD था उसका, वो मेरे हाथ में दे दिया कि अभी चाहे जैसा इसका इस्तेमाल करो। मुझे लगता है कि वो गाय ने हमको ये बहुत बड़ी सीख दी, और स्मिता इमोशनली वहाँ नहीं थी, वो इमोशनली मेरे साथ में जुड़ गई, और उसके बाद में हमको कोई वहाँ तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने जो बाद में की बातें बताया आपको कि स्मिता के ऊपर अटैक हुआ, हाथ टूट गया, तो उसकी उसको तकलीफ नहीं हुई क्या। तो ये ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं उस वक्त हम उस काम में इतने घुल मिल जाए कि हमको वो काम करने में कितनी भी दुनिया को तकलीफ लगती है, आपको आसानी लगना चाहिए कि नहीं, ये तो जस्ट होता है, कम ज़्यादा। वो तो होना ही था, क्योंकि बात ऐसी थी कि मैं तो RSS को बिलोंग करती थी, गर्व से कहो हिंदू वाली थी क्या। और ये जो था, और वो जो बैरागढ़ है वहाँ 75% मुस्लिम है, और ऐसा कहते थे कि ये जो बैरागढ़ है इतना छोटा गांव है, लेकिन ये पाकिस्तान से कुछ कम नहीं। ये वहाँ के लोग ही बोलते थे, इतना बदमाश गांव कभी देखा नहीं। और मैं उनसे भी बदमाश निकली। मेरे को एक ठग को ठग आता है, अब्राहम लिंकन का जो पत्र है क्या, कि मेरा खुद का तत्व है कुछ कुछ, कि जिसको जो भाषा आती है वो भाषा से उसको समझाना चाहिए। हाँ, कि मैं खूब सॉफ्ट ये करूँ, वो मेरे ऊपर गलत गलत कर रहा है, और मैं नहीं रे भैया ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो और ताव खाता है, वैसा नहीं, मेरा नहीं है वैसा। मेरे को जिसको जो भाषा आती है वो भाषा मुझे आती है। और हमारे गांव की स्पेशलिटी
कि 1 मिनट में करीबन 50 गालियाँ तो भी आना चाहिए कि वो उसमें भी मैं बहुत अच्छी ट्रेंड थी, क्योंकि जब से मैं गई वहाँ एक इनकी मानी हुई बहन रहती थी, एक सास में इतनी गालियाँ देती थी और रोज़ सुन सुन के मेरे को बिल्कुल बाप से लेके तो नाना तक आने चाहिए, तो उसमें ट्रेंड थी। तो मैं एक बार ऐसे बाज़ार जा रही थी और वहाँ से ऐसे सर 5 मिनट, तो वो ऐसे खींचातानी औरत को कर रहे थे। तो हम लोग नागपुर, मैं माँ जी, नागपुर की ना, हम लोग अब मालेघाट में है, वापस आना है हैदराबाद। वापिस आना है, सब लोग मालेघाट चले गया आपके साथ उधर है। तो हमने जो वहाँ का ये किया तो ऐसा लगा कि भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। तो वापस आने लायक बात करती हूँ। तो तब मैंने ऐसा सोचा कि वहाँ पहले 16 धर्मांतरण हो गए हैं और उसके बाद में हम जाने के पहले 16 आदिवासियों को मुस्लिम बनाया था। हाँ, तो मैंने जो रोका वो 14 साल के आदिवासी को उन्होंने वसीम, सुकुलू का वसीम बनाया। शॉर्ट में लेना ज़रूरी है, मालेगांव जाना है, तो उसको मैंने धर्मांतरण, पहला महाराष्ट्र का धर्मांतरण, उसको फिर से सुकुलू बनाया। और लोगों ने जो हमारे ऊपर ये किया, मालूम था हमको पिसाई, इनका कहना था कि हमको लोग तकलीफ़ देंगे। हमारा बहुत रात भर झगड़ा हुआ उस रोज़, ऐसा होएगा वैसा होएगा। मैंने ठीक है, वो समय में जीजाबाई ने जो किया उसको तो कम तकलीफ हो गई ना, आप तो बहुत आगे चले गए। तो हमको ये पिसाई नहीं, चक्की में नहीं दी। मैंने ठीक है, हम चक्की, हाथ की चक्की मैंने निकाली, मैं उसके करने लगी। मैंने पीछे नहीं हटाना, मैं बोली मैं तुमको कभी पीछे नहीं हटने दूंगी। मैंने सब्जी बेची, दूध बेची, उन्होंने हमारे पेशेंट रोके, गाड़ियाँ हमारे तक नहीं आंधी। मैंने कुछ बात नहीं, ये जो 2 हाथ है ना, ये मजदूर के हाथ है। और पूरी सब्जी भाजी, दूध बेचना, हर चीज़ मजदूरी मैंने की, लेकिन उनके सामने झुके नहीं। और आखिरी में वो हम सक्सेस हो गए और वो महाराष्ट्र का पहला धर्मांतरण किया हमने। और ये तो साहजिक है कि उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर वार करना, बंदूक से वार किया, मेरा ये हाथ इधर से इधर, इधर से इधर अलग कर दिया, इनको ये बच गए। यानी हमारे ऊपर करीबन 4-6 बार हमारा घर जलाया गया। लेकिन एक बात है, तुम अच्छा ही करो, वो तुम्हारे साथ है। और वो खुद उसकी जिम्मेदारी है कि खुद करो, क्योंकि मेरे को इतना अनुभव है कि जब मैं अकेली रहती थी, तुम सोचो नुस्ता बिना दरवाजे का घर है, हमारे घर में दरवाजे नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा वक्त था कि एक 15 साल की लड़की को एक ने किडनैप करा, तो उसके लिए मुझे जाना था। 4 तक टेम्परेचर था बच्चे को, और कैसा जाना। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं भगवान से कैसी झगड़ती थी कि अरे उतर नीचे, ऐसे मैं अकेले में बात करती थी, उतर नीचे, मैं कुछ आलतू फालतू काम करने के लिए नहीं चाह रही, मैं धर्म का काम कर ले, उतर, और तू तेरा ये काम कर, मैं जा रही। और सही में जो 4 तक टेम्परेचर उसका था, उल्टी टट्टी कर रहा था, वह रात भर घूम के आ गई। दूसरे दिन वो बच्चा अच्छा था। ना ऐसे कितने अनुभव मैं बता सकती कि तुम सिर्फ तुम्हारा इंटेंशन शुद्ध रखो। शुद्ध इसलिए मुझे ऐसा आता है कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी मालूम नहीं किसको क्या लगता है, तो कि तुम्हारा अंतःकरण बच्चे जैसा रखो तो वो भी वैसा करता है। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर छोड़ दो ना। क्या अब कितने लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है वैसा है, तुमको डर नहीं लगता क्या? क्या हम तो सांप बिच्छू के अंदर रहे वाले हैं। जिन्हें थे राम कुमार आए हैं, उनको पूछो, हमारा घर इधर से नांग जाता है, इधर से ये आते हैं क्या? तो कुछ नहीं, सिर्फ ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी जो भी है वो उसके ऊपर दे दो सब बातें। हमारे 2 बच्चे हैं, एक रोहित और एक राम, और एक बच्ची हमने आदिवासी की 1.5 साल की थी तब से पाला था। रोहित की शादी हो गई, राम की भी शादी हो गई। रोहित बचपन से ही उसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, तो एक सक्सेसफुल फार्मर करके वो पति पत्नी दोनों खेती करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि ज़्यादा इनकम देने वाली खेती कैसे करेंगे। राम
को मेडिकल में इंटरेस्ट था, उसने 3 बार मेडिकल का नीट एग्ज़ाम रिपीट किया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके एक सीनियर लड़की से शादी किया। अभी वो लड़की DNB यानी हमारी बहू DNB कर रही है, उसका DCH यानी बाल रोग का विषय में हो गया है और DNB बाल रोग में कर रही है, अभी फाइनल ईयर है उसका। उसका एक लड़का है राम का 1 साल का, रोहित के 2 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, वो तीसरी और पहली में है। और जो लड़की हमने संभाला था उसको हमने उसकी शादी करके दिए, कोकण में है वो, उसको भी एक लड़की है। ऐसा हमारा परिवार है। आप लोग कभी समय मिले तो ज़रूर मेलघाट आइए, थोड़ा सा दूर है लेकिन वहाँ आने के बाद में और भी कुछ चीज़ें आपको बातें होएंगी। बहुत 40 साल की कहानी 40 मिनट में तो नहीं हो सकती ना, लेकिन बहुत गठड़ी बंधी है मेरे पास में, आप आइएगा। एक बात महत्वपूर्ण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के आदिवासी जो है, ट्राइबल्स, जिसे हम डाउन ट्रॉडन, सर ने शब्द यूज़ किया था सुबह, तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं है। उनके पास भी उनका बहुत इंटेलिजेंस है, वो गए बीते लोग नहीं हैं, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। आज भी वहाँ डाउरी की सिस्टम नहीं है, आप समझ लीजिए। आज भी वहाँ के लड़की को कम्युनिटी का सपोर्ट है, उसके ऊपर कोई गलत नज़र से नहीं देखता, वो फीलिंग ही नहीं है। जो दिल्ली में, पूना में, बम्बई में होता है, लड़कियों के ऊपर अन्याय होता है, वो वहाँ नहीं होता। स्त्री का गर्भ है माँ के पेट में तो उसको निकाल दिया जाए, ये उनकी सोच नहीं है। लड़का लड़की जो भी होगा भगवान की देन है, वो उसको आसानी से स्वीकार करते हैं। स्त्री ने जो पैसा कमाया उसके ऊपर पुरुष का अधिकार नहीं होता। दोनों अगर कमाते हैं, काम को जाते हैं, तो स्त्री का जो धन है उसको घमोड़ी बोलते हैं वो, यानी पसीने से घाम जो मराठी शब्द है पसीना, तो घाम से कमाया हो उसने जो घमोड़ी है, तो उसके ऊपर आदमी हक नहीं बताता। शहर में ऐसा नहीं होता क्या? आज अगर दोनों लेक्चरर है तो सर बोलते हैं कि मैडम वो पेमेंट कर देना उधर का, सब बिल जो पेमेंट करना ऑनलाइन, तो आपके सैलरी आ जाएगी तो कर देना। तो वहाँ स्मिता जब आई थी तो स्मिता के शहरी कंसेप्ट थे कि उसको अनाथाश्रम खोलना था, उसको वृद्धाश्रम खोलना था। ये सोशल वर्क की एक मान्यता है कि वृद्धाश्रम खोला है यानी सोशल वर्क है, अनाथाश्रम खोला है यानी सोशल वर्क है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ अनाथाश्रम की ज़रूरत ही नहीं है। लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई फिर भी उसकी शादी होती है, समाज उसको गलत नहीं मानता। बच्चे है गलती होती है, इतना इजीली उसको एक्सेप्ट किया जाता। कोई लड़की बच्चे को गोद में लेके भी उसकी शादी होती है, लेकिन समाज बुरा नहीं मानता। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो आदिवासी नहीं है, वो हमसे आगे है सोच के बारे में। लड़का लड़की खुद के पसंद से शादी करते हैं, माँ बाप उसमें रोड़ा नहीं अटकाते, रुकावट पैदा नहीं करते। ये और वृद्धाश्रम की बात जो मैं बताना चाह रहा था कि हर घर में बूढ़े आदमी को घर में ही रखते हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है कि उसको बूढ़े को नहीं रखना है, उसको हकाल दिया, उसको कहीं जाके छोड़ दिया और वो अनाथ बन के भीख मांग रहा है। उसके लिए वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्मिता आज कहती है कि मेरी पहली कल्पना वैसी थी, लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ कि यहाँ अनाथाश्रम की ज़रूरत नहीं है या वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है। समाज सही मायने में कंफर्टेबल है, सुखी है। This is a fantastic story, the great inspiration, Margadarshak for all of us in the city, in the towns. Swamiji, I was just checking what suits these people is expand your hearts and hopes as wide as the world. I want the intensity of the fanatic plus the extensity of the materialist, deep as the ocean, broad as the infinite sky. That is the sort of heart we want. Deep as the ocean and broad as the sky. So they have been doing with their so many lessons
through the humorous stories and incidents both of them have explained. So it is up to us for meditate over it. You have heard a lot from morning. Shravanam, Shravanam, Shravanam. घर जाने के बाद tomorrow Sunday थोड़ा मननम कीजिए. Think about it. Think about it. Think about it. Let it go into the subconscious mind. Then Monday से निधिध्यासनम कर सकते हैं, meditation and practice. So these very important lessons that we have learned, Margdarshak. If anybody wants to say something about them or what you have learned, just one or two people, any doctors or anybody from, yeah, please come. Venkat, quick, come on stage. इकड़े छे. इधर. We'll save time. Good afternoon all. Myself Bhagwan Pawar. I am also from Maharashtra. My place is Solapur and I am here in AIMS Hyderabad. I am third year MBBS student. Sir, it was a very great story, sir. I came from Maharashtra till here. I heard such a big story, such an inspiring story, that each word in that world in which they live, उनके ज़माने में जो था, उसमें जो इतने खुश थे, जितने हमारे पास सब कुछ है हमारे पास आज, सब फैसिलिटीज़ है, ऑल फैसिलिटीज़ है, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है, फिर भी हम हैप्पी नहीं है. इसका एक ही रीज़न है कि हम ऐसे जीतते नहीं है. We should live like this, then we will be very happy. Sir, you are a very great inspiration for all of us. Thank you so much, sir. थोड़ा मराठी में बोल दो, हमको भी खुश होता है. सर खूप धन्यवाद. खूप छान वाटलं, डोळ्यातून पाणी येण्यासारखं वाटलं सर. बस बढ़िया. मुझे ऐसा लगता है, मराठी में बताया. मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हो, पढ़ तो लोगे, लेकिन एक साथी जो ज़िंदगी में ज़रूरी होता है वो ढूंढने की भी कोशिश करो ताकि आपका आगे की राह कुछ अच्छी बन सके और इस स्टेज पे आप आ सके. यस सर, थैंक यू सो मच सर. Namaste Maharaj and Namaste doctors and all the viewers. Today, basically I'm V. Venkatramana, an anthropologist by profession and turned into a teacher and serving for the last 27 years in this wonderful environment. And today we see a modern Jhansi in front of us, Dr. Smita, okay? And our women should take the inspiration. This is where exactly you need the power. And we know that Swami Vivekananda has shared that all the power is within me. I can do anything and everything. She is the personification of that. Yes or no? And we need to take that inspiration. And Dr. Ravinder, needless to say, calm. See, she transformed herself for his sake and never submitted. Only later on, as she went on, she transformed herself. So thank you very much, sir. It's been really wonderful. And I just have a question. How did you cater to those people who were not ready to accept? कैसा है कि every parent thinks that his baby's fever should go down. That is the basic instinct. कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चा बुखार में तकलीफ में रहे. वो चाहता है कि उसका बुखार कम हो जाए, उसकी तकलीफ कम हो जाए. इसलिए एज ए मेडिकल पर्सन वो हमारे पास आने लग गए. और जब आने लग गए तो हमने उनको जब सर्विसेज प्रोवाइड किए तो मेरा आज जो मॉडर्न डॉक्टर्स जिसे कहते हैं या मॉडर्न हॉस्पिटल जो है उनके बारे में मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी डॉक्टर है, आप पेशेंट के सिर के पास अगर बैठे रहो और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तो उसके पेरेंट्स आपको बुरा नहीं कहेंगे, उसके रिलेटिव्स आपको अटैक नहीं करेंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे. डेथ तो होना है, डॉक्टर ने ट्राई किया उसको बचाने का. आज होता क्या है कि डॉक्टर जब पेशेंट आता है तो उठता नहीं है, उसको अटेंड नहीं करता है. अटेंड करता है तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, नर्स को बोलता है इंजेक्शन दवा गोली दे दो, सलाइन लगा दो. डॉक्टर पेशेंट का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए डॉक्टर्स के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं. ये डॉक्टर्स को खुद को ही सोचने की ज़रूरत है. मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि ऑन द 4th डे ऑफ माई प्रैक्टिस मेरे पास पेशेंट की डेथ हुई, लेकिन ओवरनाइट मैं उसके सिर के पास बैठा था, उसके
लंग्स चोक होते थे तो मैं सक्शन मशीन से सक करता था, कुछ नहीं करता था। दूसरा उसको निमोनिया था, सेप्टिसीमिया था, वो बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय मेरे पास सिर्फ प्रोकेन पेनिसिलिन था, वो हेल्प नहीं कर सकता। और सेप्ट्रान एंटीबायोटिक था दूसरा, प्रोकेन पेनिसिलिन और सेप्ट्रान उसको बचा नहीं सकता। और 2 ही हाइड्रोकॉर्टिसोन थे जो 6 आवरली उसको ज़रूरत थे, तो 12 घंटे में उसको बचा पाया। लेकिन रात भर जगने के बाद में उसकी डेथ हुई तो उसकी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने रोते हुए ये कहा कि मेरे लिए नहीं बेटा, डॉक्टर ने की हुई मेहनत के लिए तुझे बचना था, डॉक्टर ने जो मेहनत किया रात भर उसके लिए तुझे बचना था। और मुझे आप लोगों को बताने को बड़ा थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि वो मुझे मिशनरी समझे क्या, क्योंकि रात भर जगने वाला डॉक्टर उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन रात भर पेशेंट के पास बैठने वाला मिशनरी उन्होंने देखा था। अगर हमको डिवोशन क्या कहते हैं वो सीखना है तो हमको मिशनरी से ही सीखना पड़ेगा क्या। और वो मिशनरी झील जब तक डॉक्टर में नहीं आती तब तक डॉक्टर के ऊपर अटैक होते रहेंगे, डॉक्टर के बिल्डिंग के कांच फूटते रहेंगे, पुलिस केसेस होते रहेंगी। उससे अगर बचना है तो हर डॉक्टर ने आज ये ठान लेना चाहिए डॉक्टर्स डे के दिन कि मैं हर पेशेंट को पर्सनली अटेंड करूंगा। आज हम कंप्यूटर में देखते हैं और टाइप करते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन और क्लिक करके उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रही है वो कंप्यूटर के कारण। डॉक्टर कभी पेशेंट के आंखों में देखता ही नहीं है। मैं 3rd ईयर मैं जब बॉम्बे को गया गायनी ऑब्स्टेटिक्स के लिए तो मेरी जो टीचर थी आहूजा मैडम, मैं चुपचाप पेशेंट आया कि उसका बीपी लेता था, मैं पहला दिन था, उन्होंने कहा कि उसका बीपी लो, यूरिन टेस्ट करके रिपोर्ट लिखो, उसका हीमोग्लोबिन कितना है वो देखो। तो मैं लिखता था केस पेपर के ऊपर, मैडम की तरफ भेजता था। तो मैडम ने मुझे एकदम चिल्लाया, डॉक्टर आर यू डेफ और डम, कुछ पूछो, कुछ बात करो उससे। आप कुछ बात नहीं करोगे तो जब डिलीवरी को आएगी तो आपके सामने एक्सपोज कैसे होगी, है ना। एएनसी पेशेंट डॉक्टर के साथ जो एएनसी में रिलेशनशिप बनना है उसके कारण वो डॉक्टर के पास डिलीवरी को आएगी, एक्सपोज होगी, बच्चे को जन्म देगी, उसको शर्म नहीं लगेगी। उसके लिए उसको पूछो कि आज क्या सब्जी खाया, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, कुछ तो सवाल पूछो पर्सनल जो मेडिकल नहीं है। आदमी क्या करता है तुम्हारा, कहाँ के हो, शादी यानी बॉम्बे के हो कि बॉम्बे के बाहर से आए हो, दूर बाहर से आए हो तो कहाँ से आए हो। ये जो नहीं अनवांटेड यानी मेडिकली नॉट वांटेड कि वो इलाहाबाद की रहे कि हरिद्वार की रहे, कहीं की भी रहे, उसको डिलीवरी करने आना है। लेकिन वैसा नहीं है। ये रिलेशनशिप जो बनाना है पेशेंट को वो अपना कॉन्टैक्ट से ही बनेगा, ये डॉक्टर ने सीखना चाहिए। These things, if we can apply, teachers, parents, students, officers, in our daily life, I think it's a total personality development and total improvement of the society. It will be real worship of Shodashi Puja. Big worships, big pujas, we do like 16 items puja. Like that, total personality they have offered to the gods of the villages. एक बात कहना चाहती हूँ कि हमको यहाँ बुलाया और हम यहाँ आए तो एनएमसी मेंबर मैं हूँ और संतोष कुमार एनएमसी मेंबर है, तो इनके कहने पर हम यहाँ आए और आपने हमारी इतनी बातें सुन ली और रामकृष्ण मिशन ने भी हमारे ऊपर इतना भरोसा किया और यहाँ तक बुलाए। उनके लिए हमको उनके आप ये समझा कि हम यहाँ आ सकते, इतना पवित्र वातावरण, यानी हमको बहुत बहुत शब्द में नहीं कह सकते कि आप लोगों के साथ जो क्षण बिताए वो हमारे लिए अमृत तुल्य है और बहुत अवर्णनीय है कि हम जो नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो। तो आपने हमको यहाँ बुलाने लायक समझा, इसलिए मैं आपके बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और संतोष कुमार के भी और आपके सब। हेलो, मैं सबके सामने और एक विषय रखना चाहता हूँ। हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन में
बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, सब कुछ है, मगर जो डॉक्टर जिसके पास दिल है, जो सेवा का भाव है, जो संवेदना है, जिस तरह का भावना है, उस भावना के सामने सब लोग नतमस्तक है। और जैसे ही डॉक्टर स्मिता जी हमारे मेडिकल कमीशन के मीटिंग में आते हैं, सब लोग उठ के उनके पांव छूते हैं, सभी लोग। एनएमसी में चेयरमैन क्या, सेक्रेटरी क्या, प्रेसिडेंट क्या, और उसका कारण है उन्होंने जितना समर्पण अपने जीवन में समाज के लिए दिया है, दोनों रवि जी और स्मिता जी ने। और उन्होंने हंसी मजाक में हमें बहुत सारा बात बताया है, और इसीलिए वंस अगेन मैं डॉक्टर रवि जी को, डॉक्टर स्मिता जी को, उनके इतने बिजी स्केड्यूल में, और बारिश मानसून का सीज़न है और वहाँ पे फार्मिंग शुरू होना है अभी, सोइंग, इस सीज़न में उन्होंने समय निकाल के यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. On behalf of all of you, convey my profound namaskars to both of you, and please accept a token of love and affection. स्मिता अम्मा को होली मदर शारदा देवी को जो पहनाया वो सारी हम लोग दे रहा है प्रसाद के साथ। Thank you, everyone. I now request our Adhyaksha Maharaj to provide some concluding. So on behalf of all of you, once again, I think they deserve a standing ovation and respect from there. Do namaskaram to them. Gods in living form serving the other gods. Huh? So Swamiji's vision of uplifting the villages and make Mother India smile again. 125 years ago he had told, now last 45-50 years, these two are doing that great service and continuing to do. Hope all of you will take that spirit nicely of perseverance, surrender, dedication and immersion in the service of the common man. That is where real India is. It may not just be Delhi or it may not be Hyderabad. It is in the villages of Maharashtra, villages of Hyderabad, villages of Karnataka, and lot of work is going on, and time permitting, you can take that, it is there on the website, in the Google, etc., their phone numbers, everything. See that if you have a challenge, go and stay with them and see the centers of activities of Ramakrishna Mission also. And it's a great joy to meet all of you. Thank you, your colleges, your schools, and all the doctors, Santosh ji, for making this wonderful arrangement. Wish you good health, strength. Thank our brother monks, thank the volunteers who last 15 days have been working rigorously to spread the message of having this conference, first of its kind, exclusively on health in being conducted in Ramakrishna Mutt and Mission. People are very happy to have this topic, burning topic of health and healthy body, healthy mind. So this is our contribution, our knowledge, awareness for all of you. So as you go out, those who have registered, they will be given a e-certificate. You have to link that e-certificate link is there. Link will be provided there outside.
a beautiful card of Swami Vivekananda called Real Worship, Teachings of Vivekananda on Seva. This will be given to all the participants, along with a beautiful book of Swamiji, His Call to the Nation. This book has had inspired Anna Hazare ji also, from man of committing suicide to man of social activism in Maharashtra. So this book also is given to you, along with Laddu Prasadam. That is a seed prasadam. Okay? Each packet contains 4. If you want more, take. But see that it is planted. You pour tree, either it is planted in gardens, big areas, or it may be planted in your house, and after it grows into a seedling, transfer it somewhere. So this also is nicely packed by our volunteers. Please take for your schools, houses, etc. So let us make India happy again and make our life dhanyam, and pray for their health, pray for their strength and peace. Om Priyatam Pundarikakshaha Sarvayagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tatsat Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Harihi Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu.